हेलो। ग्रेट। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, बढ़िया। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अकेडमी पे, जहां पे आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आप गेट की तैयारी शुरू करते हैं ना, तो आपको थोड़ी सी चीजें और पता होनी चाहिए गेट एग्जाम के बारे में, कि गेट एग्जाम से आप कहां कहां एडमिशंस ले सकते हैं। तो गेट एग्जाम से सबसे पहले तो हम इंडियन रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स के लिए एडमिशन लेते हैं। ठीक है। कुछ इंडियन कॉलेजेस हैं जो एमएस की डिग्री, जैसे आईआईटी चेन्नई हो गया, एमएस इन डेटा साइंस, ठीक है, इस टाइप की डिग्रीज भी प्रोवाइड करते हैं। इन सब के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज गेट स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, थोड़ा इजी है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एंटर करना विद द हेल्प ऑफ गेट स्कोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू टू कंट्रीज वेयर गेट स्कोर इज एक्सेप्टेड। फर्स्ट वन इज जर्मनी and the second one is Singapore. And Singapore is a very prominent country because here two universities accept your gate score. So in these universities you require two scores. अगर आपको इनमें जाना है तो you require GRE plus an English speaking TOEFL. ठीक है, to prove that you are from a non-English speaking country, so you need to prove this thing. GRE is your technical ability. Now, some universities in this country, they replace GRE with GATE score, and you can also replace TOEFL with IELTS. So that is why, suppose you need to enter into these countries, you have to have a valid GATE score, and you should also have a IELTS or a TOEFL score to prove that you are proficient with English. ठीक है। Now these university includes Nanyang Technical University and National University of Singapore. Now sir, how are these universities? I'll tell you. This is ranked 11th in QS ranking. It varies, but it is one of the best universities in Asia, and NTU also somewhere lie between 20 to 30 in QS ranking. ठीक है, so that is why as compared to Indian universities, these universities are ranked much higher. And apart from that, in Germany there is a university called as University of Munich. This and Aachen Tech universities, these two universities actually accept your GATE score. So पता होना चाहिए कौन सी है। ये हो गया इसका पूरा नाम है RWTH Aachen University. Now sir, how much score is required to enter into these universities? Sir, how much score is required to enter into these universities? So according to the norms, if you are having 90 percentile or more, you can apply. Now I am not saying if you are having 90 percentile or more, you will be getting admission into these universities, but yes, the criteria is you should have 90 percentile or more. Second to that, you should also have a valid GATE score. And now suppose if you are giving GATE this year, now GATE score is valid for 3 years. So that is why 3 years your GATE score should be lesser than 3 years old. This is first condition, and second condition is 90 percentile. The
other conditions are you should have cleared TOEFL or IELTS, and obviously GATE score will be your base. Now once you apply in these universities, then what happens? Suppose आपने NUS में apply किया. Now you will get a call that you are selected or shortlisted. Then you have to give them certain documents. These documents include all your transcripts. Now the people who don't know transcripts are, suppose your degree is there. Now in your degree, your average marks of all the 8 semesters are written. But in transcripts, every single subject is clearly mentioned. Each semester, what all subjects are there, what all marks you got in practical examination, every single thing is there. So that is why you have to send these transcripts physically to Singapore at their head office. Clear? So, but before all these activities, you should get a call from NUS. And how you get a call? You apply on the official website of National University of Singapore with your valid GATE scorecard, and then you get shortlisted. Now, what are the scopes? Now, here comes a strategic part, or here comes a part that is actually very important. Most of you don't realize this thing, but when you go to Singapore and you are pursuing your masters in computers, now there are various field or various branches. Computer science engineering is one, computing is different. So there are n number of branches in which you can apply. Not n number, limited number is there, but the thing is, Singapore, I'll write as Singapore is a technologically developed country. Now what happens? You have many industries in there. So that is why the fees is around 8.5 lakhs per annum. 8.5 lakhs per annum की fees होती है वहां पे. But the internships you get in your, you can say, while you are studying, that is more than this 8.5 lakhs. That is the beauty of these colleges. You don't have to pay much to study in these colleges, and these colleges have great reputation in international community. So आप ignore मत कीजिए. मैं ये नहीं बोल रहा IIT, ISC Bangalore, ISI and NITI ये सारे colleges खराब हैं. ये बहुत बढ़िया colleges हैं. But yes, we have an opportunity to enter into better college using GATE score. तो आप GATE score को consider जरूर कीजिए, और मैं ये बोलूंगा इस option को ignore मत करिएगा, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है. आप पहले सिंगापुर जाएंगे, वहां आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा. ऑब्वियसली वी नो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की क्यूएस रैंकिंग में रैंक हाई है. उसका रीजन है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, उनके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बेटर है. आप अगर अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, दे प्रमोट यू अ लॉट. इफ यू वांट टू एक्सप्लोर बेटर इंडस्ट्रीज, आप ज्यादा डीपर जा सकते हो उन इंडस्ट्रीज में, आपको हायर पोजीशंस ऑफर होती हैं. तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा. मेरा बस ये कहना है, मैं मानता हूं हमारा क्या है ना, ब्रेन स्टक है. मैं उनमें से एक हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. अगर मुझे दोबारा गेट देने का मौका, मतलब मैं दोबारा गेट देके अगर मुझे फिर से वो ऑफर मिले कि मुझे IIT बॉम्बे, ISC बैंगलोर, निटी मुंबई और NUS में चुनना है, तो मैं NUS को चुनूंगा. उसका रीजन है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज खराब है, बट हाँ ऑब्वियसली NUS के बहुत ज्यादा स्कोप्स हैं. हाँ, क्योंकि मेरे पर्सनल गोल से कि मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में मुझे काम करना है, इसलिए मेरे लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल थी. लेकिन अगर आप इंडिया में रह के ही काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली IITs चुनिएगा. ठीक है. अब होता क्या है, NUS NTU से पढ़ने के बाद आपको इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी मिलती है, तो आपको खर्चा बहुत महंगा पड़ता नहीं है. सेकेंड टू दैट, आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है. अब जब आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो होता क्या है, सिंगापुर का नाम इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है. ठीक है. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अच्छा खासा नाम है, टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है सिंगापुर. सो अब होता क्या है, यहां से अगर आप यूरोप में एंट्री चाहते हैं तो बहुत इजीली मिल जाती है. यूरोपियन कंट्रीज में अगर आपको जॉब करनी है, यूएस में तो इक्वली डिफिकल्ट है इंडिया के जितना, बट हाँ अगर यूरोपियन कम्युनिटीज में जॉब करना चाहते हैं, यूरोप में 10-12 साल 15 साल जॉब करना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां से मिल जाती है. ठीक है. तो दैट इज वाई इसको कंसिडर जरूर कीजिएगा. हाँ भाई, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट opportunities हैं, and these universities are easy to crack. and moreover, देखो
इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो बिना गेट स्कोर का के एंटर करने देती हैं, बट दीज यूनिवर्सिटीज आर नॉट वेरी गुड. द यूनिवर्सिटीज दैट आई हैव मेंशन्ड यू, 1 2 3 4, दीज आर टॉप यूनिवर्सिटीज. एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सिंगापुर, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं. मतलब इंडिया के कंपैरिजन में, इंडिया कॉलेजेस के कंपैरिजन में भी बेटर यूनिवर्सिटीज हैं. और चाहिए भी क्या है, एक नॉर्मल गेट परसेंटाइल आपका अच्छा है. अगर दे आर नॉट कंसर्न विद कि आपकी रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 आई है, दे आर मच मोर कंसर्न विद कि आपका एक डिसेंट गेट स्कोर है. हाँ सर, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल में या जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में 2 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है. अब अगर आपकी रैंक 20,000 से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो, जबकि हम मानते हैं 20,000 बहुत ज्यादा रैंक होती है, बट स्टिल यू कैन अप्लाई. वंस यू अप्लाई, उसके बाद इनका कंसर्न रहता है कि आपके बैकग्राउंड्स कैसे रहे, आपके 10th के 12th के मार्क्स कैसे रहे, आपका कॉलेज परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसी है, आपने कोई रिसर्च पेपर छापा है कि नहीं छापा है. तो बस यहां पे दिक्कत क्या है ना, इंडियन स्टूडेंट्स में ये दिक्कत होती है कि हमने अपनी कॉलेज लाइफ में ना सिर्फ पढ़ाई को तवज्जो दी रहती है, एंड दैट टू जो बोलते हैं ना एकेडमिक एजुकेशन को. वेयर एज जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो किस चीज पे फोकस करती हैं कि आपकी प्रैक्टिकल एजुकेशन कैसी रही है, आपने क्या कोई रिसर्च पेपर छापा है, आपने क्या कोई पेटेंट कराया हुआ है, क्या आपने किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में कुछ अच्छा स्कोर किया है. ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इंडियन स्टूडेंट्स के साथ. बाकी कोई दिक्कत नहीं है. क्या आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स खेला है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स कैसी हैं, तो यहां पे थोड़ी सी कमी रहती है. बट मैं ये बोलूंगा अप्लाई जरूर करना, क्योंकि काफी अच्छी स्कोर पे, मतलब आपकी कम से कम रैंक होगी ना, तब भी आप हो सकता है एंटर कर जाओ इन कॉलेजेस में. और जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं जिनकी रैंक 1 2 3 और टॉप 10 में आए थे, उनसे बेटर आप परफॉर्म कर लो, ठीक है. क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, गूगल जैसी कंपनियां तो मतलब अच्छे खासे भाव में यहां से उठाती हैं. समझ रहे हो, हमारे यहां से प्लेसमेंट्स होते हैं 1 2 3, किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी से गूगल के प्लेसमेंट्स कितने होंगे, 2 लोग गए 3 लोग गए. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में 22 प्लेसमेंट्स होते हैं गूगल में. एंड गूगल जैसी बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया में आती तक नहीं है, वो सिंगापुर में आती है. तो आपके प्लेसमेंट्स बहुत शानदार है. एनयूएस के प्लेसमेंट्स इज फिनोमिनल. मैं बता रहा हूं, मतलब कॉलेज से प्लेसमेंट्स नहीं होते, जॉब फेयर लगता है, बट जॉब फेयर में इतनी इजीली जॉब मिलेगी ना आपको. इनफैक्ट इन इंडिया अगर आप एनयूएस से पढ़ने के बाद वापस इंडिया आ रहे हो तब भी आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं, ठीक है. तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी. अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे बस इतना ही बताना था आपको, बिकॉज दीज थिंग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. इसके अलावा आपके कुछ डाउट्स हो तो आप बताइए. नयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, एकिन यूनिवर्सिटी, यही 4 यूनिवर्सिटीज है. गेट स्कोर भी मैंने बता दिया आपको, कोई दिक्कत है ही नहीं. मतलब मैं ये बोलूंगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. मतलब आप एक बार एनटीयू का कैंपस देखना. यहां पे मैं आपको एनटीयू का कैंपस दिखाऊं क्या, रुको. नयान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज, आप कैंपस देखो यार, मतलब क्या कैंपस है. मतलब इन कैंपसेस में पढ़ने का मजा ना बहुत अलग रहता है. समझ रहे हो, आप एंट्री देखना इन कॉलेजेस में क्या है क्या नहीं है. तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करिए कि क्या कैसा होता है, क्या नहीं होता है, क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती. मतलब बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं यार ये. दीज आर ब्रिलियंट ब्रिलियंट यूनिवर्सिटीज. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर देखो आप, मतलब वन ऑफ द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज है ये. और इसके कोर्सेज इतने तगड़े कोर्सेज हैं, मतलब बहुत अच्छे कोर्सेज हैं यार इनके. अब मतलब वर्ल्ड क्लास कम्युनिटीज हैं यार ये. मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में तो इतने, मतलब एनयूएस का कैंपस अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत अच्छा है कैंपस है. क्योंकि देखो लैब्स बहुत फेमस है एनयूएस की, बहुत ज्यादा फेमस लैब्स हैं. मतलब ब्रिलियंट पीपल यार जो मतलब यहां से निकले हैं ना, उनके आप इनके एलम बेस के बारे में कभी पढ़ना, ठीक है. इंडियंस के बारे में पढ़ना कि इंडियंस ने कैसा परफॉर्म किया है एनयूएस में. बहुत इंडियंस जाते हैं और एनयूएस में, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं. तो यू हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऐसा नहीं है कि नहीं है.
चलो हिमांशु, जो आपके डाउट है ना वो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके एक बार क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट है ना आप कर सकते हैं क्लियर। और मैं बता रहा हूं फॉरेन यूनिवर्सिटीज को मिस मत करो, आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे गेट से एक्सेप्ट मतलब ये यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करेंगी। बट हाँ यही है कि एडमिशन रेट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पेटेंट और ये सारी चीजें नहीं होती। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है ना, आप एक डिसेंट गेट स्कोर ले आओ, बस ठीक ठाक एकदम, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि बस आप 50 नंबर ले आओ, आपका फ्यूचर तय है, तय। बट यही है कि आपने अगर पहले कुछ किया हो तो। ठीक है। इफ यू डोंट नो अबाउट प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो प्लस सब्सक्रिप्शन में यू गेट टॉप एजुकेटर्स टीचिंग यू, डिजिटल नोट्स यानी पीडीएफ्स मिलते हैं आपको, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। वेयर एज एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस के अलावा यू गेट कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग फीचर, प्रिंटेड नोट्स, वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप, स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लानर, इंटरैक्टिव ओपन हाउस सेशंस। 18 मार्च से 4 नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। उड़ान बैच इज अ 1 year बैच इन इंग्लिश मीडियम, बुनियाद is a 2 year batch in English medium, Ignite is a 1 year batch in English medium, and Foundation is a 2 year batch in English medium. Apart from that आपको PSU की तैयारी भी काफी अच्छे से कराई जाती है। टॉप एजुकेटर्स हैं इस पे, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्रॉपर पीडीएफ बुक्स मिलती हैं, तो आपको इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है। एंड 5600 प्लस यूनिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं आपको। ठीक है। आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो अगर, तो यू कैन यूज द कोड प्रखर21। ठीक है, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। उसके बाद भी अगर प्राइसेस ज्यादा लगे तो यू कैन ऑप्ट फॉर नो कॉस्ट ईएमआई और 0% इंटरेस्ट ऑन लोन, 0% इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। इसके अलावा रुद्र बैच है। रुद्र बैच इज अ रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स आपको इसमें मिलते हैं। 15 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी 6399 का चल रहा है, एंड 30 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है इट इज ब्रॉट डाउन टू 8000 रुपीज। ठीक है। इंग्लिश मीडियम रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। इसके अलावा अन अकेडमी का एक सेंटर दिल्ली में खुलने के लिए जा रहा है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप 33% ऑफ उस पर भी उठा सकते हो। रैंक प्रिडिक्टर इज लाइव। गेट की रैंक अगर आपको अपनी नापनी हो तो आप इस मेथड का यूज करके अपनी रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट अब क्या ही करोगे, रिजल्ट तो आने ही वाला है ऑलमोस्ट। ठीक है। इसके अलावा 27% ऑफ चल रहा है CSIT सब्सक्रिप्शन पे। एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू हैव unlimited access to all batches and classes. In class doubt solving by top educators is there, access to digital notes and home delivered printed notes। तो ये होगा अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो, एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो हैं ही। एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है प्लस का, दैट इज फॉर 32,982 सारे डिस्काउंट्स के बाद, एंड आइकॉनिक का इज 43,813। वेयर एज अगर 2 साल की बात करें तो प्लस का सब्सक्रिप्शन इज 50,154 और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन इज 61,017। ठीक है। यहां पे मेरा लेक्चर खत्म होता है। जो छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी मैंने दे दी है, बट मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इन यूनिवर्सिटीज को इग्नोर मत कीजिए, इनको एक्सप्लोर कीजिए और टारगेट करिए कि यार मुझे IITs में जाना है, नहीं जाना है, बट इन यूनिवर्सिटीज में जाना है कि नहीं जाना है, और जाना है तो उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप 1 साल है आपके पास, 1 साल में आप अगर अपनी प्रोफाइल बनाना चाहें तो ये सही समय है अभी भी कि आप रिसर्च पेपर बहुत इजीली छाप सकते हैं। 2-3 महीने अच्छी रिसर्च करके रिसर्च पेपर किसी फैकल्टी के साथ मिलकर छाप सकते हैं। अपने अच्छे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। बट यही है, अगर आप गेट की फुल फ्लेश तैयारी करोगे और रैंक होल्डर बनना चाहते हो तो आप इन चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाना चाहते हो तो इन चीजों को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ गेट स्कोर से इसमें एडमिशन नहीं होता। इसमें एडमिशन के लिए आपकी एक प्रोफाइल चाहिए होती है। ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अदरवाइज आई एम डन। मेरा मतलब मुझे इतना ही बताना था आपको। ठीक है। चलिए।